हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज अख्तर और आज मैं लेकर आया हूं इलेक्ट्रिसिटी का एपिसोड नंबर 2। इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बचे हुए पूरे टॉपिक्स को। हमने पहले सेशन में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कई चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज के बारे में डिस्कशन करा था। उसके अलावा जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं आज हम इस सेशन में कर लेंगे। सो बने रहिए और स्किप किए बिना पूरे वीडियोस को देखिए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हम शुरू करते हैं। जो फर्स्ट है हमारा वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को समझने के लिए सबसे पहले चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज को समझना होगा। तब हमारे एपिसोड नंबर 1 को देखें जिसमें फर्स्ट सेशन में हमने उसको डिस्कशन किया था। यहाँ पे ओम्स लॉ है। सबसे पहले देखेंगे कि ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है। सो ओम्स लॉ states that the potential difference across the 2 points of a metallic conductor is always directly proportional to the current passing through it at the constant temperature. This point to be noted here that the constant in this case is always temperature is always constant in this case. So यहाँ पे बेसिक इफ अगर हम यहाँ पे मैथमेटिकली ओम्स लॉ को डिस्क्राइब करें तो हम लिख सकते हैं here V means voltage and I is the current. So V is directly proportional to I. And we know that when we are removing the sign of proportions, we are keeping a constant, that is here R is the that constant. It is called resistance. अगर ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए जो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं कुछ इस टाइप्स का रहता है। यहाँ पे हम एक बैटरी लगाते हैं और फिर यहाँ से एक रियोस्टैट है जिसको वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाते हैं ए और बी के टर्मिनल के बीच में। एंड वी नो दैट कि जो वोल्ट मीटर है वो इसके पैरेलल में होता और फिर यहाँ पे एक एमीटर लगाते हैं, यहाँ पे एक की लगाते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं इसको। सो ये सर्किट डायग्राम शो करता है कि वेरीफाई करने के लिए ये इस तरह से हम अरेंज करते हैं। सो मेनी टाइम्स बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए सर्किट डायग्राम ड्रॉ करें। जब भी क्वेश्चन आए तो आप इस टाइप से डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। 2 और 2.5 समटाइम 1.5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। इसके आगे हम देखेंगे जो रेजिस्टेंस, हमने समझा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। सो बेसिकली रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है एक प्रॉपर्टी है मैटर की जिसकी वजह से वो रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ चार्ज को। वी नो दैट जब कंडक्टर में चार्ज फ्लो होता है तो एक जैसे फ्रिक्शन है, जब एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन द सरफेस देन सरफेस अपोज दैट देयर मूवमेंट, so that is called friction. Similarly, when the current is passing through the conductor, so the conductor having a property by which it resisting the flow of charge, that is called the resistance. It is denoted by the capital R and the SI unit of the resistance is ohm. And we can define the 1 ohm as when the potential difference is 1 volt and current is 1 ampere through a conductor, then it's said to be 1 ohm. So we can also write here 1 ohm is equal to 1 volt by 1 ampere. Resistor, so this is resistance, this is the properties is intrinsic property or internal property of the conductor. So and the resistor, sometime we can also produce the resistance by using the device that is called the resistor, right? So this is basically nothing, this is a device used to produce the resistance in the circuit. And this is a diagram, the symbol of the resistors. Next is here the rheostat. This is called the variable resistance and this is a component used to regulate the current without changing the source of the voltage, and this is represented by the symbol of like resistance बना के इसको एक ऐसा arrow mark कर देना, it's showing the variable resistance. Next है हमारा we know that the resistance depends on the many factors. So we will see here how many factors on that the resistance depend. The first is the nature of the material. For the different type of material the resistance is different. Similarly, it is depends on the temperature, which is directly proportional to the temperature. If the temperature increases, the resistance also increases. If the temperature decreases means resistance also decreases. Next is here the length of the conductor. So the resistance is always directly proportional to the length of the
conductor, we can write here R is directly proportional to L, and this is inversely proportional to the area of the cross section. So we can write R is directly inversely proportional to the area of cross section. So like this is a conductor, हम इससे एक कंडक्टर मान लेते हैं, तो इसका जो लेंथ है वो L है, और इसकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स एरिया परपेंडिकुलर टू दी दैट कंडक्टर, राइट। सो जो एरिया है ये ए है, और इसकी जो रेजिस्टेंस है इसके अंदर में वो आर है। तो यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 से हम देखेंगे दैट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एंड दिस इज आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। सो यहाँ दो व्हेन वी कंबाइन दीज टू इक्वेशंस विल गेट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। तो यहाँ से वी नो दैट व्हेन वी आर रिमूविंग द साइन ऑफ कांस्टेंट वी आर कीपिंग अ, तो जब भी हम यहाँ पे से कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहाँ पे सॉरी साइन ऑफ प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट डालते हैं। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो है रो, इट इज दिस इज रिप्रेजेंटेड टू द रेसिस्टिविटी, दिस इज अनदर वन दैट रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या होता है हम देखेंगे यहाँ पर। So basically resistivity is nothing but this is the defined as the resistance offered by a cube of a material of side 1 meter when the current flows perpendicular up to its opposite side. So ये भी क्या है, एक रेजिस्टेंस ही है, बट ये यूनिट एरिया में जो रेजिस्टेंस होता है हम उसको रेसिस्टिविटी कहते हैं। तो इसके जो ऐसा यूनिट होती है, अगर हम पीछे फार्मूला देखेंगे तो इसका जो फार्मूला है R is equal to rho is from here we can get rho is equal to R into L by R into A by L। सो इसका जो ऐसा यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओम मीटर, राइट। एंड रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज विथ द लेंथ और द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट मीन्स दैट ये डिपेंड नहीं करता ना तो लेंथ पर और ना ही एरिया पर। एक सेम मटेरियल का ये हमेशा क्या होता, सेम रहता रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ और द क्रॉस सेक्शन एरिया, बट ये डिपेंड्स करता है टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर में चेंज हुआ तो इसकी रेसिस्टिविटी में भी चेंजेस आएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो डिफरेंट मटेरियल है उसके लिए रेसिस्टिविटी का रेंज डिफरेंट होता है। लाइक द मेटल्स और अलॉयज के लिए जो रेंज है वो है 10⁻8 टू 10⁻6 ओम मीटर, जो कि बहुत ही कम है। और इसी वजह से मेटल्स एंड द अलॉयज इज वेरी गुड कंडक्टर। वी नो दैट रेसिस्टिविटी जो होती है वो डिसाइड करती है कंडक्टिविटी को। सो कंडक्टिविटी मीन्स दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टिविटी, जितना कम होगा उतना ज्यादा गुड कंडक्टर होगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं जो इंसुलेटर है या जो बैड कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर है, तो उसका जो रेंज होता है वो 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर होता है, जो कि बहुत ज्यादा है। इसी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। हम जानते हैं कि जो रेसिस्टिविटी ऑफ अलॉय है दिस इज हायर देन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। लाइक कोई अलॉय है एंड इट इज मेड अप ऑफ द टू मेटल्स, तो उन मेटल्स के कुछ तो भी अपने रेसिस्टिविटी होंगी, तो उस रेसिस्टिविटी से ज्यादा जो है अलॉय की रेसिस्टिविटी होती है। यहाँ पे एक और भी जो अच्छी और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है अलॉय की वो ये है कि ये ऑक्सीडाइज नहीं होता हाई टेम्परेचर पे, इसलिए जो है ना इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस के फॉर्म में जनरली इसको यूज किया जाता है। कॉपर और एल्युमिनियम जो वो भी यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन के लिए, बिकॉज इनकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं अभी हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता, रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था, रेजिस्टेंस में हमने देखा कि जो रेजिस्टर्स है वो हम उसको ऐड कर सकते हैं, राइट। तो रेजिस्टर्स कैन बी एडेड इन टू वेज, इधर इन द सीरीज और द पैरेलल। तो जब हम सीरीज में कब ऐड करते हैं और पैरेलल में कब ऐड करते हैं, तो रजिस्टर्स में रजिस्टर को हम सीरीज में कब ऐड करेंगे, कनेक्ट करेंगे, और पैरेलल में कब कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कि जब हमें सर्किट में रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए होता तो हम रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और अगर हमें कम चाहिए तो हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे सीरीज में अगर कनेक्ट है तो हम इसे कैसे कहेंगे कि दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज और नॉट। सो व्हेन द टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्स
यहाँ से लेकर यहाँ तक R1 है, फिर यहाँ से यहाँ तक R2 है, फिर यहाँ से, तो ये एक एंड टू एंड ये कनेक्टेड है, तो हम इसे कहेंगे कि दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज और दिस इज कॉल्ड द सीरीज कॉम्बिनेशंस। इन in this case the total resistance is always sum of the individuals, एंड यहाँ पे 5 ऐसे वर्ड्स हैं जो सिमिलर वर्ड हैं, जिसमें टोटल, रेजिस्टेंस, ओवरऑल, इफेक्टिव और रिजल्ट, यस। सो ये जितने भी वर्ड हैं, इक्विवेलेंट आल्सो, इक्विवेलेंट वर्ड इज आल्सो हियर। सो जितने भी वर्ड हैं ये सब के सब सेम वर्ड हैं, सिमिलर मीनिंग रखते हैं, तो इनको फाइंड करने के लिए हमें उनके इंडिविजुअल्स को ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ हियर इट इज गिवन R1, R2 एंड R3। so when these are connected in the series, so the total sum will be R1 plus R2 plus R3। ओके, अब आगे देखेंगे जो करंट जब ये सीरीज में कनेक्ट होता है तो इसके थ्रू दिस द करंट इज ऑलवेज सेम। सपोज यहाँ से I करंट पास करेगा तो अक्रॉस दी R1 हियर इट विल बी आल्सो R that I, and here also will be I, here also will be I। so तीनों के अक्रॉस जो करंट होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा, राइट। लेकिन लेकिन जो वोल्टेज है वो वोल्टेज क्या होगा, अक्रॉस द इंडिविजुअल रजिस्टर्स इट विल बी डिफरेंट, एंड इसका जो सम होगा वो सम उसके एक किसके इक्वल होगा, वोल्टेज ऑफ द बैटरी के। अब एक और बात याद रखेंगे कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इट इज ऑलवेज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। सपोज करिए यहाँ पे 3 रजिस्टर्स आर गिवन है, इसकी वैल्यू 5 ओम है, इसकी 10 ओम है एंड इसकी जो है 20 ओम है, तो जब सम करेंगे तो ये 20 से ज्यादा आएगा। अब देखेंगे इन इस इक्वेशन में क्या होता है कि एज आई टोल्ड यू दैट कि जो सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द इंडिविजुअल्स आर इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी, तो यहाँ पे इस इट मींस दैट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। हियर V1 इज द वोल्टेज अक्रॉस द R1, V2 is the voltage across the R2 and V3 is the voltage across the R3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब we know that according to the Ohm's law V is equal to IR, so we can say V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2 and V3 is equal to IR3। so यहाँ पर हम और V is equal to IR, so hence we can say कि जो V है तो यहाँ पे हमारा जो V है we will substitute this V1, V2 and V in this equation, so we will get V is equal to IR1 plus IR2 plus IR3। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि I जो है वो क्या है, कॉमन है, so the IR is equal to I कॉमन ले लेंगे and R1 plus R2 plus R3। here I and IR कैंसिल हो जाएगा, so the R is equal to R1 plus R2 plus R3। तो इस तरह से ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, R1 is equal to R1 R is equal to R1 plus R2 plus R3। नेक्स्ट हम देखेंगे जब ये कनेक्ट होगा पैरेलल में तब क्या होगा, तो याद रखेंगे पैरेलल मींस व्हेन द resistors are connected between 2 points, the n number or the more than 2 resistors are connected in between 2 points, then it's said to be parallel combinations। okay, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे A और B के बीच में 3 resistors are connected R1, R2 and R3। okay, तो इसे हम कहेंगे ये पैरेलल में कनेक्ट है। ओके, सो रिमेंबर इट, वोल्टेज जो होगा ना इसके अक्रॉस में, अक्रॉस द इंडिविजुअल विल बी इक्वल एंड सेम, एंड इट इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। सेकेंड थिंग दैट द टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट, बट यहाँ पे जो करंट होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। लाइक यहाँ से I करंट पास करेगा तो यहाँ पे जाके ये I1, ये I2, ये I3 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा करंट। in that case the total current will be the sum of the current across the individual resistors। लाइक यहाँ पे क्या हो जाएगा, I is equal to I1 plus I2 plus I3। तो यहाँ पे जब हम अकॉर्डिंग टू हम जब फॉर्मूला लगाएंगे ओम्स लॉ का, सो वी विल गेट अ फॉर्मूला 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मतलब अगर इसका टोटल निकालेंगे हम, इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा वो इक्वल होगा सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। And one more thing, the very important, you have to remember that the equivalent resistance is always lesser than the value of the smallest individual resistance in the combinations। As I told you in the series combination, suppose this is 5 ohm, this is 10 ohm, this is 15 ohm, so total will be
less than the 5 ohm. You remember this, that it is always lesser than the uh, less or the least one. Now we have to see the next one. What is the advantage of the parallel combination over the series combination? In a series, we know that in the series circuit, when one component fail, the circuit is broken and none of the component works. क्योंकि एक ही वायर में कनेक्ट होते हैं सीरीज में, तो अगर एक कंपोनेंट अगर वर्क नहीं कर रहा, फ्यूज हो गया, फेल हो गया, तो पूरे के पूरे कंपोनेंट्स वर्क करना छोड़ देंगे. दूसरा, डिफरेंट अप्लायंस हैव द डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द करंट, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, सेम करंट जो है उसमें फ्लो होगा. इसी तरह से जो टोटल रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में, इन द पैरेलल इट डिक्रीज्ड. ओके, तो ये डिसएडवांटेज है, एडवांटेज है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, और वी कैन से दिस इज द एडवांटेज ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशंस. ओके, तो हम जानते हैं कि जो हाउस होल्ड वाइडिंग होती है ना, वो हमेशा होती है, हाउस होल्ड वाइडिंग हमेशा पैरेलल में होती है, ये कभी भी सीरीज में नहीं होती. अब आगे हम देखेंगे, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट. हम जानते हैं कि जब भी जो है हीट, तो यहाँ पे जब करंट फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर से, तो उसमें एक हीट जो है ना प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. एंड द मेनी डिवाइसेस आर बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि आयरन है, आयरन बॉक्स, टोस्टर, फ्यूज, दिस फिलामेंट ऑफ द बल्ब, ये सभी जो है ना हीटर है, दैट बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक सर्किट. ओके, अब आगे देखेंगे, यहाँ से फार्मूला कितना हीट प्रोड्यूस होगा अगर इलेक्ट्रिक करंट उससे पास हो रहा है. तो हम देखेंगे कि जो हीट प्रोड्यूस होता है वो होता है आई स्क्वायर आर टी, यानी हियर H is the heat produced by the current, I is the current, R is the resistance and T is the time taken. अब यहाँ पे दिस इज कॉल्ड द जोल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. So Joule's law stated that the heat produced in resistor is always directly proportional to the square of the current, that H is equal to I square, and similarly it is directly proportional to the time on which the current flows, and it is also directly proportional to the R. So basically from here we can say H is equal to I square RT. So heating effect is desirable in device like the electric heater, electric iron, electric bulb, electric fuse, etc. as I told you. So these are the some examples of the heating effect of the electric current. Next we have to see here that some practical applications of the heating effect is given, like the we know that the filament of the bulb is made up of the tungsten. Why it is made up of the tungsten? The first thing that it does not oxidize at the high temperature. The second, that it having the high melting point, it is about 3400 Celsius, 33 3380 degrees Celsius. And similarly, the bulb are filled with the chemically inactive gases like the nitrogen and the argon to prolong the life of the filament. Okay, so they are the two reasons, because of that the filament of the tungsten are made up of the used to make the filament of the electric bulb, because the main important is here that its melting point is very high, and so that it it does not burn easily. And the second example is electric fuse. We know that in the electric circuit fuse is given. Fuse क्या रहता है, एक सेफ्टी डिवाइस है कि जब भी ओवरलोडिंग होती है या कुछ तो भी होता है, ओवरलोडिंग के टाइम में, शॉर्ट सर्किट के टाइम में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज मेल्ट हो जाता है, एंड इससे पूरे अप्लायंस बच जाते, सेफ हो जाते. सो द इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज टू सेव द अप्लायंस ड्यूरिंग द ओवरलोडिंग और द शॉर्ट सर्किट. ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट रहते लाइव वायर में,
और इट हैव द वेरी लेस लो मेल्टिंग पॉइंट, जिसकी वजह से जल्दी मेल्ट हो जाता है। और इसकी जो करंट कैपेसिटी है इट इज हायर देन दैट ऑफ द अदर अप्लायंस, जिसकी वजह से इसका यूज होता है। सो दीज आर द सम practical applications of the heating effect of the electric. The next and the last our topic is electrical power. Electrical power, it means that the rate at which electrical energy is consumed or dissipated in the electric circuit. किस रेट पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, खर्चा हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, हम उसे इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। इसका फॉर्म हम वी हैव अ थ्री फार्मूला, P is equal to VI, here V the voltage, I the current, and similarly P is equal to I square R, and the third is V square by R. इसकी जो ऐसा यूनिट है वो वॉट है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W, एंड 1 watt वी कैन डिफाइन एज 1 volt इंटू 1 ampere। इसकी जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है वो होती है किलोवाट आवर, इसी को हम लोग 1 unit भी बोलते हैं। एंड 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 power 6 joule। Okay, so 1 kWh is always known as the 1 unit of the electrical energy। like जिस आपके घरों में जो इलेक्ट्रिकल बिल आते हैं यूनिट में आते हैं कि 10 unit, 100 unit, 500 unit बिजली खर्चे हुए, तो वो एक्चुअल मीन्स 1 unit मतलब होता है 1 kWh। सो ये कुछ चीजें थी, इनके साथ पूरे चैप्टर फिनिश हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने की कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे, और उसके अलावा जो बाकी चैप्टर है फिजिक्स के वो भी हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम अपलोड कर सके। सो हमारे साथ बने रहिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।